Let us deduce the first order reaction when we have the reactant and the product are in gaseous phase. In the previous class, we have discussed the first order reaction together with zero order reaction. In the previous class, we have discussed the first order reaction, and today we will discuss the first order reaction when the reactant and product are in gaseous state. So, let us consider a reaction. Consider a reaction in which A is to give B plus C, where A is in gaseous state, B is in gaseous state, C is in gaseous state. We know the PA, it is known as the partial pressure. Partial pressure of A. PB, it is the partial pressure of B, and PC is the partial pressure of C. If we want to calculate the total pressure, then total pressure is represented as PT, and PT equals to PA plus PB plus PC. Now we will deduce what the first order and the first order reaction in case we have the reactant in gaseous phase and the product are in gaseous phase. Let us say in the first case, if at time t0, at t equals to 0, when t equals to 0, then A will be P initial, and B will be, the pressure of B will be 0, and the pressure of C will be 0. They have their units, but at time t, where t equals to T, then what we have, the pressure will reduce because some of the reactant is converted into product. Then what we have, Pi minus X, and the same X, we have the partial pressure of B, X and X. Then in that case, we know what is the total pressure. We will know P total after time t. What we have, P total equals to this plus this plus T. This is the A, concentration of A. This is B plus C. PT equals to partial pressure due to A, partial pressure due to B, and partial pressure due to C at after time t. Then what we have, PA plus PB plus PC. PA equals to Pi minus X, P initial minus X, plus PB equals to X, and PC equals to X. When we simplify it, what we have, Pi minus X plus X plus X. What we have, Pi minus X. It is known as total pressure. To the next, we want to know what is PA. In order to know PA, then what we have, if we want here PT, then we can deduce the value of what, X. When we transfer X here and P here, what we have, X equals to Pi minus PT. To the next, but what we see here, I left here the sign plus, here what we have plus. Then when we will transfer this Pi here, then what we have, PT minus Pi. PT minus Pi. This is the value of X we have. But we know, what we know? This
PB, PA, partial pressure of A, PA, it is equals to PI minus X, equals to PI initial minus X. Putting the value of X from here, what we have? PI minus PT plus PI. What we have? 2PI minus PT. This is known as PA. Then what we have? हमने क्या देखा? हमारे पास एक रिएक्शन है. रिएक्शन क्या है? A is to give B and C. What is the peculiarity of the reaction? क्या खासियत है इसमें? कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसेस स्टेट में है. हम जानते हैं अगर सभी गैसेस स्टेट में होंगे तो इनका कंसंट्रेशन हम इनके पार्शियल प्रेशर से जानेंगे. तो पीए का जो पार्शियल प्रेशर है वो पीए हमने रिप्रेजेंट किया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के लिए, पीबी रिप्रेजेंट किया है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के लिए, पीसी रिप्रेजेंट किया है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी के लिए. पार्शियल प्रेशर का मतलब वो केवल सी के कारण प्रेशर है. फिर हमने देखा कि टोटल प्रेशर को हम पीटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पीटी क्या होता है? इंडिविजुअल जितने भी कंपोनेंट है सबके प्रेशर का सम होता है. तो टोटल प्रेशर हमारे पास है पीए प्लस पीबी प्लस सी पीसी. तो ये हमारे पास क्या है? टोटल प्रेशर है. जब इनिशियल कंडीशन होगा व्हेन द टाइम t0 तो हमारे पास बी और सी यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होंगे और हमारे पास क्या होगा? केवल रिएक्टेंट होगा. और टोटल प्रेशर भी जो होगा वो किसके कारण होगा? हमारे पास रिएक्टेंट के कारण. तो एट t0 हमारे पास पी टोटल क्या हो जाएगा? पी आई प्लस जीरो. तो पी टोटल हमारा हो जाएगा पी आई. अब क्या करेंगे? कुछ समय के बाद व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड फॉर सम टाइम देन हमारे पास एक टाइम टी के बाद हम देख रहे हैं कि कुछ जो है ये ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और जितना ए का डिक्रीज करेगा उतना ही बी और सी का फॉर्म करेगा. तो हमने देखा कि जो ए का कंसंट्रेशन है वो एक्स डिक्रीज हुआ और इसीलिए बी और सी एक्स बने. तो हमने क्या किया? पी आई माइनस एक्स और बी हमारा एक्स हो गया और सी भी एक्स हो गया. अब यूनिट्स की बात करें तो दे हैव देयर ओन यूनिट्स. या तो हम एटीएम में लें या जैसे लें. आफ्टर टाइम टी के बाद टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? हमारा टोटल प्रेशर हो जाएगा पीए प्लस पीबी प्लस पीसी. व्हाट आई हैव डन हियर? पीए प्लस पीबी प्लस पीसी. पीए क्या है हमारा भाई? पी इनिशियल माइनस एक्स रख दिया मैंने. पीबी क्या हमारा? एक्स है और पीसी क्या हमारा? एक्स है. अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया है. ये 2x माइनस एक्स तो ये हो जाएगा प्लस एक्स. पी इनिशियल प्लस एक्स. तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? पी इनिशियल प्लस एक्स. अब हमने यहां से निकाल लिया किसको? x को निकाल लिया. तो x क्या हो जाएगा? पी टी माइनस पी आई इक्वल्स टू एक्स. क्यों निकाला? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन क्या है? हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है K इक्वल्स टू 1 बाई टी और वी कैन राइट 2.303 log P initial by P final. Or we can say K equals to 2.303 by T log P initial, or we can write R naught, which is known as initial concentration, R naught by R, which is known as final concentration. Now, अब इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे? ए के कंसंट्रेशन को ही, ए के पार्शियल प्रेशर को ही कंसीडर करेंगे. तो हाउ वी कैन राइट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? तो 2.303 एज सच बाई टी और लॉग हमारा क्या हो जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था इसका? पी आई, और फाइनल कंसंट्रेशन ए का क्या है? पी आई माइनस एक्स, और जो हमने पी आई और पीटी के टर्म्स में जाना है वो क्या है? 2PI माइनस पीटी, 2PI minus PT. So this is, we have the rate constant. We can deduce, we can get the rate constant when we know the initial pressure and the final pressure after time t. तो किया क्या है हमने? हमें क्या करना था? जब गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हों तो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या इक्वेशन होगा, कैसे की को डिटरमाइन करेंगे और सारे टी को कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए हमें रेट कांस्टेंट के लिए एक रिलेशन खोजना था.
तो रिलेशन खोजने में हमारे पास इक्वेशन है k इक्वल्स टू 2.303/t log r इनिशियल बाई फाइनल। तो क्या करेंगे हम इस रिएक्शन में पीए को ही ले लेंगे और पीए का इनिशियल प्रेशर जान लेंगे और पीए का फाइनल प्रेशर जान लेंगे। तो इस पूरे रिएक्शन में हमने किया क्या है कि आफ्टर टाइम टी समय के बाद जो इनिशियल प्रेशर पीए का क्या है और फाइनल प्रेशर क्या है, तो हमारे पास क्या है ये पी आई और ये पी आई माइनस एक्स। तो हमने इसको क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, उसको हमें किसके टर्म में जानना था, पीटी के टर्म में जानना था। तो ये एक्स, अब इस एक्स को हमने पी आई माइनस एक्स को पी आई और पीटी के टर्म्स में चेंज कर लिया और देखिए यहाँ पे हमने इसको पीए इक्वल्स टू 2 PI माइनस पीटी, ये फाइनल कंसंट्रेशन है और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल है ये फाइनल है और सारी चीजें सेम है, ये इनिशियल प्रेशर है और ये फाइनल प्रेशर है। दिस इज हाउ वी कैन गेट द रेट कांस्टेंट व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसेस फेज। नाउ we will deduce the half life period for zero order reaction, and next to that we will deduce the half life period for first order reaction. Let us discuss the half life period for zero order reaction. हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। हाफ लाइफ पीरियड क्या है, द टाइम इन विच अ सब्सटेंस इज रिड्यूस और डिसइंटीग्रेटेड टू इट्स हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट, यानी कि वह समय जिसमें कोई भी चीज, कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाए, आधा हो जाए। वह समय जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए, that is known as half life period. Let us discuss. We know for the first order reaction, for zero order reaction, zero order reaction के लिए क्या है हमारे पास, K equals to R naught minus R by T. If you are thinking that from where we have got this equation, तो मैं आपको बताऊं कि जब हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को निकाला था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हमको मिला था ये RT इक्वल्स टू R नॉट माइनस R, वहीं से हमने इस इक्वेशन को लिया है। अब हमने क्या डिस्कस किया है कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, उसको लिख लें। हाफ लाइफ पीरियड the time in which a substance is decomposed to half of its initial अमाउंट। तो हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड क्या है, वह समय जिसमें कोई सब्सटेंस अपने इनिशियल कंसंट्रेशन या अमाउंट के हाफ हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। तो हाफ लाइफ पीरियड एट टाइम, तो टाइम क्या है हमारे पास, एट टाइम टी, और वो टी क्या हो जाएगा हमारे पास, T1/2। हाफ लाइफ को हम इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हाफ लाइफ पीरियड में हमारा आर क्या हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी द concentration of substance left, it is equals to R naught by 2। ये इनिशियल कंसंट्रेशन उसका क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। देन पुटिंग दिस वैल्यूज, अब ये वैल्यूज को हम रखेंगे इस इक्वेशन में, व्हाट वी गॉट, पुटिंग दिस वैल्यूज, these value
इन above इक्वेशन वी गेट, क्या हमको मिलेगा, रखेंगे ये वैल्यूज यहां रखेंगे, तो व्हाट वी हैव k इक्वल्स टू आर नॉट माइनस, ये r क्या हो जाएगा हमारा, आर नॉट बाई टू हो जाएगा, आर नॉट बाई टू डिवाइडेड बाई टी हाफ, ये टाइम क्या हो जाएगा हमारा t1 बाई टू हो जाएगा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट वी हैव t हाफ, और वी कैन राइट, इसको यहां ट्रांसफर करेंगे, t1 बाई टू इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर बाई टू, तो क्या हो जाएगा हमारा ये आर नॉट बाई टू के। दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, हाफ लाइफ पीरियड है। और क्या देख रहे हैं कि ये जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड द हाफ लाइफ पीरियड is directly proportional to initial concentration, and inversely proportional to rate constant। तो ये है हमारे पास, हमने क्या डिड्यूस किया, हमने क्या पाया कि जो हाफ लाइफ पीरियड होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास अधिक होगा तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, उसका लंबा होगा, और अगर कम होगा इनिशियल कंसंट्रेशन तो उसका हाफ लाइफ पीरियड जो है वो क्या होगा, कम होगा। और ये हमारे पास रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट जो टी हाफ की डिपेंडेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का डिपेंडेंसी है, किस पे, रेट कांस्टेंट पे। तो ये हमने क्या निकाला, हमने निकाला हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ वी विल गेट एन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, वही सेम कंडीशन है हमारे पास। देन द टाइम व्हाट वी हैव, टाइम इज इक्वल टू टी हाफ, और जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या होगा, हाफ होगा। अब ये सारी वैल्यूज हम जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन डिड्यूस किया है रेट कांस्टेंट के लिए, उसमें ये सारी वैल्यू को पुट करेंगे और हमको टी हाफ मिल जाएगा। लेट अस डू इट। व्हाट वी हैव हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है देखेंगे। वी नो k इक्वल्स टू 2.33 बाई टी लॉग आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिड्यूस किया है। किसके लिए भाई, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, एट टाइम, तो टाइम क्या लेना है, एट टाइम t इक्वल्स टू t1 बाई टू। क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास क्या जानना है, हाफ लाइफ पीरियड जानना है, तो t की जगह क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा। और कंसंट्रेशन, देन द फाइनल कंसंट्रेशन विल बी r नॉट बाई टू। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, जैसे मैंने डिफाइन भी किया है आपको। लेट अस पुट दिस वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को हम इन प्रीवियस इक्वेशन में, अब इक्वेशन में रखेंगे। पुटिंग दिस वैल्यूज इन above इक्वेशन
we have what we have क्या है हमारे पास, देखेंगे. We will write k equals to as such 2.303 by t. तो t की जगह पे हम क्या लिखेंगे, t half. We will write t1 by 2 log as such r naught क्या हमारा as such रहेगा r naught, और फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पे क्या हो जाएगा r naught by 2. तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं हम, we will write it as k equals to 2.303 by t1 by 2 log 2r naught, उसको हमने यहां ट्रांसफर किया, by r naught. r naught से कैंसिल हो जाएगा. What we have k equals to 2.303 by t1 by 2 log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 और log 2 की वैल्यू क्या होती है, और वी कैन राइट k equals to 2.303 by t1 by 2 log 2 is equals to 0.3010. ट्रांसफर t half to here, हमको क्या मिलेगा, t1 by 2 equals to, when we multiply it, what we have 0.693 by k. Then we have the equation for half-life period for the first order reaction. तो हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाला हाफ लाइफ पीरियड क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. क्या हम यहाँ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ नहीं है, फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ नहीं है. इट मीन्स द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल कंसंट्रेशन, whereas it is going to depend upon the rate constant k. So this is what we have deduced the half life period for first order reaction.